God gave us one more opportunity to worship Him in Yehovah Shammah. हमारे खुदा ने और एक बार हमारे खुदा की इबादत करने का मौका यहोवा शम्मा में हमें दिया है। So, to worship our God and to be strengthened by the Word of God this evening, once again look unto the Lord in prayer. और एक बार हमारे खुदा का कलाम देखेंगे और उसमें से ताकत हम पाएंगे और उससे पहले हम दुआ करेंगे। Our loving heavenly gracious Father, once again we thank you and we praise you, Lord. ऐ हमारे आसमानी बाप, और एक बार हम आपका शुक्र अदा करते हैं और आपकी हमद व सना बजा लाते हैं। Father, we thank you for this evening that you given to us, Lord. ऐ हमारे आसमानी बाप, आज शाम को लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं क्योंकि आपने हमें आज का शाम बख्शा है। Father, strengthen us once again from thy word and speak with all of us from thy word. आसमानी बाप, आपके कलाम के जरिए से हम सबों से आप गुफ्तगू करें और आपके कलाम के जरिए से हम सबों को मजबूत करें। Hide us under your arms, Lord. Fill us with thy spirit and with thy truth. आसमानी बाप, आपके हाथों के पीछे हमें छिपाएं और आपकी सच्चाई की मामूरी से हमें मामूर फरमाएं। Father, use us for your glory to worship your name. आपके नाम का जलाल जाहिर करने के लिए आपके जलाल के वास्ते हमें मुस्तमिल रखें। Father, committing ourselves unto your loving hands with the humble heart, we pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आसमानी बाप, आपका शुक्र अदा करते हुए छोटी सी दुआ हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। Let us turn our Bibles to the book of Psalms, Psalm number 98. चलें हम हमारी बाइबल को, यहोवा की किताब को, साम्स चैप्टर नंबर 98 देखेंगे। Psalm 98 verses 1 to 4. मज़ामीर की किताब चैप्टर 98 पहली 4 आयतें। O sing unto the Lord a new song, for he hath done marvelous things. His right hand and his holy arm hath gotten him the victory. यहोवा के हुजूर नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अजीब काम किए हैं। उसके दहने हाथ और उसके मुकद्दस बाजू ने उसके लिए फतह हासिल की है। The Lord hath made known his salvation. His righteousness hath he openly shewed in the sight of heathen. यहोवा ने अपनी नजात जाहिर की है, उसने अपनी सदाकत कौमों के सामने नुमाया की है। He hath remembered his mercy and his truth toward the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. उसने इस्राएल के घराने के हक में अपनी शफकत व वफादारी याद की है। इंतहाई जमीन के लोगों ने हमारे खुदा की नजात देखी है। Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a loud noise and rejoice and sing praise. ए तमाम अहले ज़मीन, यहोवा के हुजूर खुशी का नारा मारो, ललकारो और खुशी से गाओ और मदह सराई करो। Here in this psalm we will see that the psalmist is saying that he hath done marvelous things. यहाँ पे मज़ाम नवीस ये कहते हैं कि हमारे खुदा ने अजीब काम किए हैं। His right hand and his holy arm hath gotten him the victory. उसके दहिने हाथ और उसके मुकद्दस बाजू ने उसके लिए फतह हासिल की है। And also in the third verse it says that he hath remembered his mercy and his truth toward the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. और तीसरी आयत में लिखा हुआ है, उसने इस्राएल के घराने के हक में अपनी शफकत व वफादारी याद की है। इंतहाई जमीन के लोगों ने हमारे खुदा की नजात देखी है। God showed his salvation toward house of Israel. खुदा ने, यहोवा ने अपनी नजात इस्राएल के घराने के हक में जाहिर किया है। And all the ends of the earth have seen the salvation of our God. और इंतहाई जमीन के लोगों ने भी हमारे खुदा की नजात देखी है। In this salvation, God did marvelous things in the life of Israel. इस नजात के जरिए से हमारे खुदा ने इसराइलियों की जिंदगियों में अजीब व गरीब काम किए हैं। For this reason, and by remembering his marvelous works, here the psalmist calling us to sing a new song and to worship him because he hath done marvelous things.
और इस वजह से इस मज़ामिर नवीस इस मज़मूर में कहते हैं, यहोवा के हुजूर नया गीत गाओ क्योंकि उसने अजीब काम किए हैं, उसके दाहिने हाथ और उसके मुकद्दस बाजू ने उसके लिए फतह हासिल की है। If we see in the life of Israel, the salvation how he given to them is the redemption from the bondage of the slavery. अगर हम इसराइलियों की जिंदगियां देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि खुदा ने ये नजात किस तरीके से इसराइलियों को बख्शी थी और वो उनको बंदिश से मिस्रईम की गुलामी से छुड़ाने से खुदा ने दी थी। Children of Israel went down to Egypt and they lived there for 400 years. इसराइलियों ने मिस्रईम को उतर के गया और वहां पे तकरीबन 400 बरस वहां जीते रहे। And after the 400 years, the children of Israel were under the bondage in the Egypt. और उन 400 बरसों के बाद इसराइलियों को क्या हुआ था, उनको खुदा ने उस मिस्रईम की गुलामी से खुदा ने छुड़ाया था। And the king of Egypt very rudely he made children of Israel as slaves. और उन दिनों में मिस्रईम का सुल्तान बादशाह जो था उसने इसराइल के बच्चों को बहुत बुरी तरह उसने गुलामी में उनको लपेट लिया था। And the children of Israel cried unto the Lord in their pain. इस वजह से उनके दर्द में इसराइल के बच्चों ने यहोवा खुदा को पुकारने लगे। And word of God is telling us in the Exodus chapter 2, और यहोवा की किताब में खुरूज की किताब बाब नंबर 2 में हम पढ़ते हैं, verse 23 and 24. यहाँ पे 23 और 24वीं आयतों में पढ़ते हैं, It came to pass in process of time that the king of Egypt died, and the children of Israel sighed by reason of the bondage, and they cried, and their cry came up unto God by reason of the bondage. और एक मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया और इसराइल के बच्चों ने अपनी गुलामी के सबब से आह भरने लगे और रोए, और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बाइस था खुदा तक पहुंचा। And God heard their groaning, and God remembered his covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. और खुदा ने उनका कराहना सुना और खुदा ने अपने अहद को जो अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ था याद किया। And 25th verse is telling us that God looked upon the children of Israel and God had respect unto them. और 25वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और खुदा ने इस्राएलियों पर नजर की और उनके हाल को मालूम किया। And we see in the chapter 3 that God came down to redeem the people, and he sent his servant Moses to bring them out of the bondage. और आयत नंबर 3 में हम बाब नंबर 3 में हम पढ़ते हैं कि खुदा उतर आया और उन पर नजर किया और उसके बाद मोशे को चुना और इसराइलियों को इस तरह बंदिश और गुलामी से बाहर निकाल कर लाया। God remembered the covenant which he made to the forefathers Abraham, Isaac, and Jacob. खुदा ने अपने लोगों के बारे में जो मतलब अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ जो वादा खुदा ने किया था उसे याद किया था। And he heard the groanings of the children of Israel, and he wanted to deliver them. और इसराइलियों का रोना सुना था खुदा ने, इस वजह से वो उन्हें छुड़ाना चाहा। Children of Israel, they themselves could not come out of that bondage. इसराइल के बच्चे जो थे वो सब के सब अपने आप इस गुलामी में से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। They were looking unto God and they were crying for the helper. वो लोग तो खुदा की राह तक रहे थे और मददगार के मुंतजिर रहे थे। They are remembering the promises of God that God will surely bring them out of the bondage. उन्होंने खुदा के वायदों को याद किया कि खुदा ने कहा था उनसे कि खुदा उनको इस गुलामी से बाहर निकालेगा। So finally God sent his servant Moses to bring them out of the bondage. इस तरीके से आखिरकार क्या हुआ था, खुदा ने अपने बंदे मोशे को भेजा था ताकि वो जाए और अपने लोगों को इस गुलामी से छुड़ाकर बाहर लाए।
And Exodus chapter 6 verse number 6 says, और खुरूज की किताब 6 की 6 में हम पढ़ते हैं, Exodus chapter 6 verse number 6, खुरूज की 6 के 6, Wherefore say unto the children of Israel, I am the Lord, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, and I will rid you out of their bondage, and I will redeem you with a stretched out arm and with great judgments. सो तू इसराइलियों से कह है, मैं यहोवा हूँ और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूंगा और मैं तुमको उनकी गुलामी से आजाद करूंगा और मैं अपना हाथ बढ़ाकर और उनको बड़ी बड़ी सजाएं देकर तुमको रिहाई दूंगा। God redeemed with a stretched out arm with his own power. खुदा ने अपनी ही ताकत से अपना हाथ बढ़ाकर खुदा ने उनको छुड़ाया था। That means he worked himself to redeem them. मतलब इसका मतलब ये होता है कि खुदा ने खुद काम किया, काम पे लगा उनको छुड़ाने में। He just not simply pity on them and say, come out of bondage. उनको याद करके उन पर तरस खा के चलो गुलामी से बाहर निकलो करके कहा नहीं था। But he stretched out his arm and he brought them out of the bondage. लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि उसने अपना हाथ खुद बढ़ाकर उनको गुलामी से खींच के बाहर लाया। And also chapter 15 Exodus verse number 13 also says, इतना ही नहीं बल्कि खुरूज की किताब 15 की 13 में लिखा हुआ है, 15 verse number 13, खुरूज की किताब 15 की 13, Thou in thy mercy hast led forth the people which thou hast redeemed, thou hast guided them in thy strength unto thy holy habitation. अपनी रहमत से तूने उन लोगों की जिनको तूने खलासी बख्शी रहनुमाई की और अपने जोर से तू उनको अपने मुकद्दस मकान को ले चला है। The redemption of the children of Israel is totally work of God. इसराइलियों की नजात का काम जो है वो पूरा का पूरा खुदा का काम था। He heard the groanings of the children of Israel खुदा ने इसराइलियों का रोना सुना था and he remembered the covenant he made to the Abraham, Isaac and Jacob. और खुदा ने उस अहद को याद किया था जिससे उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधा था। And he came down and with his stretched out arm he redeemed them, he led them, he brought them into the holy nation. और वो खुद नाजिल होकर अपना हाथ बढ़ाकर उन लोगों को बाहर निकाल के उनको अपनी ही उम्मत बनाई। In the children of Israel, in the life of children of Israel, this is one great wonderful work God did in their life. इसराइलियों की जिंदगी में ये बहुत अहम बात है कि खुदा ने खुद उनके वास्ते आया और काम पे लगा। We know the book of Exodus tells us to redeem them in this marvelous work. He also did many more things which everyone are astonished by seeing those works. और इतना ही नहीं बल्कि खुरूज की किताब में और बहुत सारी अजीबोगरीब बातें हैं, काम हैं जो खुदा ने किए हैं और उनको सुनकर लोग हैरान और दंग हो जाएंगे। Marvelous works means making people to astonish, to surprise, how which is not possible by human but only possible by God. अजाइब व गराइब का मतलब ये होता है कि वो काम जो इंसान कभी कर नहीं सकता बल्कि खुदा ही कर सकता है और उनका जिक्र सुनकर पढ़कर इंसान दंग हो जाता है। So in the children of Israel, redemption from the bondage is a marvelous work. तो इस तरीके से याद फरमाएं कि इस्राएलियों की जिंदगी में गुलामी में से छूट कर बाहर निकलना खुदा का एक अजीब काम था। And after bringing them out of the bondage, second thing, God also led them throughout the wilderness. और इस तरीके से गुलामी में से छुड़ाकर बाहर लाने के बाद खुदा ने और एक काम किया था और वो काम था उन लोगों को तकरीबन 40 बरस तक बियाबान में आगे बढ़ाते लेकर जाना। The journey of the wilderness also made children of Israel to see many marvelous things in their lives. बियाबान की सफर जो थी वो भी इजराइल की जिंदगियों में बहुत अजीब व गरीब काम देखने का मौके से भरी हुई थी।
Parting the Red Sea is a one marvelous thing in their life. उनकी जिंदगी में एक अजीब काम ये था कि खुदा ने बहरे कुल्ज़म को, लाल बहर को उसने तकसीम किया, फट दिया। Leading them and following the children of Israel by the clouds, pillar of cloud and pillar of fire is another marvelous thing. और एक अजीब काम ये था कि खुदा ने इस्राएलियों के दरमियान रहते हुए बादल के सुतून और आग के सुतून बनकर, मतलब उनके दरमियान रहते हुए उनकी रहनुमाई की। So those pillars made them when to sit, when to move forward. तो वो सुतून उनको बताते रहते थे कि कब तक वहां ठहर के रुकना है एक जगह में और कब कूच करके आगे बढ़कर दूसरी जगह में पहुंचना है। God guided every their step. खुदा ने इस तरीके से उनका हर कदम जो है, कदम ब कदम उनकी रहनुमाई की। Not only that, इतना ही नहीं बल्कि but God also provided them food and water. खुदा ने उनको खुराक बख्शी और पानी भी दिया। When they felt hungry, God provided them manna from heaven. जब वो लोग बहुत भूखे लगने लगे तो खुदा ने आसमान से मन्ना उनके लिए बरसाया। When they were thirsty, God opened the rock and provided for them the water. जब उन लोगों को प्यास लगने लगी तो खुदा ने एक पत्थर को फाड़ कर उसके बीच में से पानी लाकर उनको पिलाया। Their clothes did not wear out. और इस तरीके से याद फरमाएं कि उनके लिबास जो थे वो भी पुराने नहीं हुए। Deuteronomy chapter 8 verse number 3 and 4 reads like this. इस्तिस्ना की किताब बाब नंबर 8 और आयत नंबर 3 and 4. 3 और 4। Deuteronomy chapter 8 verses 3 and 4. इस्तिस्ना की किताब 8 की 3 और 4। And he humbled thee and suffered thee to hunger and fed thee with manna which thou knewest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord doth man live. Thy raiment waxed not old upon thee, neither did thy foot swell these 40 years. और उसने तुमको आजिज किया भी और तुमको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तुम ना तुम्हारे बाप दादा जानते थे तुमको खिलाया, ताकि तुमको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो यहोवा के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। इन 40 वर्षों में ना तो तुम्हारे तन पर तुम्हारे कपड़े पुराने हुए और ना तुम्हारे पांव सूजे। The word of God says in the Psalms chapter 78, they ate the angels' food. इतना ही नहीं बल्कि मज़ामिर की किताब चैप्टर 78 में यहाँ पे मज़मूर नवीस ये फरमाता है कि इस्राएलियों ने फरिश्तों का खाना खाया था। 23 onwards we read that though he had commanded the clouds from above and opened the doors of heaven and had rained down manna upon them to eat and had given them of the corn of heaven, man did eat angels' food, he sent them meat to the full. और मज़ामिर की किताब चैप्टर 78 वर्स 24-25, और खाने के लिए उन पर मन बरसाया और उनको आसमानी खुराक बख्शी। इंसान ने फरिश्तों की ग़िज़ा खाई, उसने खाना भेजकर उनको आसूदा किया। God proved himself to be the Jehovah Jireh. हमारे खुदा ने अपने आप को यहोवा यीरे की तरह अपने आप को जाहिर किया। God is the one who provides. हमारा खुदा मुहैया करने वाला खुदा है। The provision God did in the life of Israel in the wilderness is a marvelous thing. जो खुराक को खुदा ने बख्शी थी और जो चीजें खुदा ने मुहैया की थी उन 40 बरसों में बियाबान की सफर में, वो तो बहुत अजीब और गरीब बात है। So redemption is a marvelous thing. तो हम देख रहे हैं कि मखलसी जो है उनकी वो एक अजीब काम है। Provision in wilderness also a marvelous thing. और बियाबान में जो खुदा ने उनके लिए चीजें मुहैया की वो बात भी अजीब काम है। And after the wilderness, finally he brought them into the promised land. और उसके बाद खुदा ने क्या किया था, उन लोगों को मुल्क मऊद में उनको लाया था। God
fulfilled the covenant he made with Abraham. इस तरह खुदा ने अब्राहम से जो वादा किया था उसे निभाया था। Joshua gives testimony that in Joshua chapter 21 verse number 45, इसकी निस्बत यहोशुआ की किताब में यहोशुआ एक गवाही देता है। 21 verse number 45. यहोशुआ की किताब चैप्टर 21 और verse 45। There failed not aught of any good thing which the Lord had spoken unto the house of Israel, all came to pass. और जितनी अच्छी बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने से की थीं, उनमें से एक भी ना छूटी, सब की सब पूरी हुईं। Children of Israel rebelled many times against the Lord. इस्राएल के बच्चों ने, इसराइलियों ने बहुत सारी बार खुदा के खिलाफ बगावत और सरकशी करते रहे। Even though they cried in the Egypt and groaned because of their bondage, in the wilderness they don't want to go to the promised land. वो लोग पुराने दिनों में वो लोग मिस्र में जब रहते थे वहां पे रोते रहे, कराहते रहे, लेकिन जब खुदा ने उनको छुड़ाकर बियाबान में मऊदा मुल्क के पास जब ले जाना चाहा, सफर में ले आया, तब उन्होंने नहीं चाहा कि वो मऊदा मुल्क मऊद में जाएं। When they face its sufferings, when they feel something lack, they want to go back. जब भी उनको कुछ चीज की कमी महसूस हुई या कभी भी वो लोग थोड़ी सी बात को लेकर नाखुश हुए, तो यकायक ये चाहते थे कि हम वापस मिस्र में जाएंगे। But God patiently with love, he remembering the covenant which he made to the Abraham, he brought them into the promised land. लेकिन खुदा ने बहुत तहम्मुल से, प्यार से उस वादे को याद करते हुए, जिस वादे को उसने उनके बाप दादा अब्राहम से, इसहाक से किया था, उस वादे के मुताबिक उसके वास्ते उनको मुल्क मऊद में ले आया था। And finally he showed that his promises never fail. इस तरीके से खुदा ने साबित करके दिखाया कि उसके वादे जो हैं वो कभी टलते नहीं हैं। So this is how the marvelous things God did in the children of Israel. इस तरीके से खुदा ने इस्राएलियों की जिंदगियों में उनके वास्ते अजीब व गरीब काम किए हैं। And also in our lives also God made his salvation openly showed. इस तरीके से हमारे जिंदगियों में भी खुदा ने अपनी नजात जो है उसे बहुत वाज़े तरीके से हमारे सामने रखा है। In the second verse we'll see that the Lord hath made known his salvation, his righteousness hath he openly showed in the sight of the heathen. Chapter 98 verse number 2. मज़ामीर की किताब चैप्टर 98 वर्स 2। यहोवा ने अपनी नजात जाहिर की है, उसने अपनी सदाकत कौमों के सामने नुमाया की है। And third verse also, he hath remembered his mercy and his truth toward the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. उसने इस्राएल के घराने के हक में अपनी शफकत व वफादारी याद की है, इंतहाई जमीन के लोगों ने हमारे खुदा की नजात देखी है। And also we know that the words of Rahab, she says that our hearts were melted by hearing the wonders that your God did in among you. और उसके बाद राहाब की बातें भी हम याद कर सकते हैं कि वो भी कहती है कि हम लोगों ने सुना कि आपके खुदा ने आपके लिए कितने अजीब व गरीब काम किए हैं। All the enemies of the Israel trembled and they came to the children of Israel and they surrendered themselves. इस तरीके से जितने भी इस्राएलियों के दुश्मन थे वो सब के सब कांप उठे और इस्राएलियों के सामने आकर घुटने टेक कर अपने आप को उनके सुपुर्द कर दिए। People who knew not God Jehovah, they themselves saw the salvation that God gave to the Israel. जितने लोग रहते थे उन दिनों में वहां पे, जो यहोवा खुदा को नहीं जानते थे, उन लोगों ने यहोवा खुदा के कामों को इसराइलियों के दरमियान देखा था। The same God remembered and also he showed his love upon us. He sent forth his only begotten son for us. उसी खुदा ने हमको फिर से याद किया और अपने इकलौते बेटे यीशुआ को हमारे वास्ते नजात देने के लिए भेजा। And he
foreknew us before the foundations of the earth. इतना ही नहीं बल्कि जमीन की बुनियाद डालने से पहले ही खुदा ने हमको याद फरमाया, हमको जाना। It's only His love that He remembered us to deliver us from the bondage of sin. और सिर्फ उसकी मोहब्बत के मुताबिक ही खुदा ने हमको नजात देकर गुनाह से छुड़ाने के लिए उसने इरादा किया। As the children of Israel were under the bondage of this slavery, we were also under the bondage of sin and Satan and enemies. जिस तरह इस्राएल के बच्चे इसराइलियों ने मिस्रईम में इसराइलियों ने मिस्रईम में गुलामी में रहा, उसी तरह हम भी हमारे गुनाहों और हमारी खताओं की गुलामी में हम भी रहते थे। Colossians chapter 1 verse number 13 and 14 says, कोलोसियों की किताब बाब नंबर 1 और 13 और 14वीं आयतों में लिखा हुआ है। Colossians chapter 1 verses 13 and 14. कोलोसियों की किताब बाब नंबर 1 13 and 14. और आयत नंबर 13 और 15। Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his dear Son, 13 और 14। in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की मुआफी हासिल है। And also Ephesians chapter 1 verse number 7 says, इतना ही नहीं बल्कि इफिसियों की किताब 1 की 7 में लिखा हुआ है। Ephesians chapter 1 verse number 7, इफिसियों की किताब 1 की 7, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. हमको उसमें उसके खून के वसीले से मखलसी यानी कसूरों की मुआफी उसके उस फजल की दौलत के मुवाफिक हासिल है। In our Lord Jesus Christ we received redemption. हमारे खुदाउन यीशुआ में ही हमें नजात हासिल हुई We है। received forgiveness of sins. हमें हमारे गुनाहों की मुआफी हासिल हुई We है। were delivered from the power of darkness. तारीकी के कब्जे से हमें खुदा ने छुड़ाया। We were translated into the kingdom of his dear Son. उसके अजीज बेटे की सल्तनत और राज में हम लाए गए हैं। Not only God delivered us and saved us from the darkness, he also providing us every day our daily bread. खुदा ने हमको खुदा ने हमको मखलसी बख्शी, इतना ही नहीं बल्कि हमें रोज की खुराक भी वो बख्शता है। And the word of God tells us that our Lord Jesus Christ also in his teaching how to pray, he says that we should ask God for our daily bread. और यहोवा की किताब में हम ये भी पढ़ते हैं कि हमारे खुदाउन यीशुआ ने खुदा की दुआ जब उन्होंने सिखाई, तब उन्होंने कहा था वहां पे कि हम रोज की रोटी के लिए भी मिन्नत करें। Because our God is the one who provides for us bread. क्योंकि हमारा खुदा ही है वो जो हर दिन का हर रोज की खुराक हमें बख्शता है। When we ask and receive that bread, जब हम मांग कर वो खुराक पाते हैं, surely we will be satisfied. जरूर हम उस खुराक से सैर होते हैं। That bread is the word of God. और वो खुराक क्या है? वो है खुदा का कलाम। Even whatever the situation we live, if we ask God, speak with me, strengthen me, and if we read the word of God, he strengthens us, he feeds us. हर दिन जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, तो जब हम खुदा से दरख्वास्त करते हैं कि खुदा मुझसे बातें कर, मुझे रूहानी खुराक बख्श करके जब हम खुदा से मिन्नत करते हैं, तो वो ज़रूर हमें रूहानी खुराक ग़िज़ा वो बख्शता है और हमें सैर करता है। And also God supplying all our needs in our daily life. इतना ही नहीं बल्कि खुदा हर दिन हमारी जिंदगियों में हमारी हर चीज जो है, जरूरत जो है, वो हमें अता करता है। Philippians chapter 4 verse number 19 says, फिलिपियों की किताब 4 की 19 में लिखा हुआ है, But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. मेरा खुदा अपनी दौलत के मुवाफिक जलाल से
माशियख यीशुआ में तुम्हारी हर एक एहतियात रफा करेगा। God supply all our needs. खुदा हमारे हर एहतियाज रफा करेगा। Not only that, from the life of Paul, we learn that we need for every situation God's grace. लेकिन इतना ही नहीं बल्कि खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि जो भी हमारी ज़रूरतें हों उन सब के लिए खुदा की रहमत हमारे लिए ज़रूरी है। Once Apostle Paul was suffering with something, एक बार ऐसा हुआ था कि पौलुस रसूल जो थे उन्होंने कुछ ज़रूरी बात को लेकर फिक्रमंद बन गए and he asked God that he may remove that pain. और उन्होंने क्या किया था, खुदा से दरख्वास्त की, खुदा से उन्होंने मिन्नत की कि वो दर्द उनके बदन से निकाल दे। But God said, my grace is sufficient for thee. लेकिन खुदावंद ने कहा था कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। And in Lord Jesus Christ, और इस तरह खुदावंद यीशुआ में giving us all the promises, सारे के सारे वायदे दिए गए हैं and he also giving us his grace abundantly unto us. और इतना ही नहीं बल्कि अपना फजल खुदा हमारे लिए जो देता है वो हमारे लिए काफी है। The word of God says in the Lamentation that his grace is every day and new in our lives. नौहा की किताब में हम पढ़ते हैं कि उसका फजल जो है वो हमारे ऊपर हर दिन असर नौ है। Lamentation chapter 3 verses 22 and 23. नौहा की किताब chapter 3 22 and 23. 22 और 23। It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. नौहा की किताब 3 की 22 और 23। ए यहोवा की शफकत है, ये यहोवा की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है, वो हर सुबह ताज़ा है, तेरी वफादारी अजीम है। God showing his grace upon us abundantly. खुदा अपनी शफकत हम पर बहुत कसरत से दिखाता है And also his compassions every morning making anew in our life. और हर रोज, हर दिन, हर सवेरे उसकी रहमतें हम पर ताज़ा हैं। How great is his faithfulness. उसकी वफादारी कितनी ही अजीम है ना। Not only that, इतना ही नहीं बल्कि even though we failed many times in our lives, हमारी जिंदगियों में बहुत सारी बार हम तो नाकाम हो जाते हैं, even though we rebelled against God many times in our lives, बहुत सारी बार हमारी जिंदगियों में हम खुदा के खिलाफ सरकशी करते हैं, God did not forget his covenant in our lives in Lord Jesus Christ. फिर भी खुदा ने हमारी जिंदगियों में भी जो उसका अहद है, जिसे उसने हमारे वास्ते खुदावंद यीशुआ के जरिए से किया था, उसे खुदा कभी भूला नहीं। God showing his loving kindness upon us. खुदा अपनी बड़ी शफकत हम पर दिखाते ही आ रहा है। He brought us into the fellowship of his son. उसने हमें क्या किया था, अपने इकलौते बेटे की शिराकत में लाया था। In our Lord Jesus Christ we found the rest. और खुदावंद यीशुआ में हमारी रूहों की तसल्ली हमने पाई है। Many times, even after accepting the Lord Jesus Christ, many times we fail, but God did not fail in our lives. बहुत सारी बार हमारे खुदावंद यीशुआ को मानने के बाद भी हम अपनी जिंदगियों में गिरते रहे, नाकाम बनते रहे, निकम्मे बनते रहे, लेकिन खुदा ने हमें छोड़ा नहीं। And our Lord Jesus Christ also promised us that he will take us into the eternal rest, eternal life when he returns for us. और इतना ही नहीं बल्कि खुदावंद यीशुआ ने भी हमसे वादा किया है कि जब खुदावंद आएंगे आसमान से तो हम सबों को वो फिर से ले जाने वाले हैं। And John's Gospel chapter 14 we read यूहन्ना की किताब 14वां बाब में हम देखते हैं verses 2 and 3. दूसरी और तीसरी आयतें। In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार
करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। Our God brought us from the darkness into the marvelous light. हमारे खुदा ने हमें तारीकी से रोशनी में ले आया है। Our God has brought us into the fellowship of our Lord Jesus Christ, हमारे खुदा ने हमें हमारे खुदावंद यीशु की शिराकत में ले आया है where we found the rest and peace in our hearts. और उनकी मौजूदगी में हमारे दिलों को आराम मिला है। And also our Lord Jesus Christ promised us that He will come for us and take us to be with Him. और हमारे खुदावंद यीशु ने हमसे वादा किया है कि वो फिर से आसमान में से आएंगे और हमें उनके पास ले जाएंगे। We have a great rest ahead of us. और हमारे सामने हमारे आगे मुस्तकबिल में हमारे वास्ते बहुत बड़ा चैन, अमन और आराम है। Surely, as the children of Israel received the promised land, we also will have this promised Canaan, which is about to, we will be there one day. जैसे इस्राएल के बच्चों को खुदा ने यकीनन मऊदा मुल्क दिया था, मुल्क मऊद दिया था, उसी तरीके से हमें भी खुदा एक दिन ले जाकर अपना मुल्क मऊद बख्शेगा। For these marvelous things which He hath done in our lives, तो इन अजीब बातों को लेकर जिन्हें उसने हमारी जिंदगियों में किए हैं, redemption from the bondage, मतलब क्या है? गुनाह से छुड़ाना and provision and leading throughout the wilderness, और बयाबान के सफर के दौरान हमें खुराक बख्शना and bringing us into the promised land, into the safety place, rest into the Lord Jesus Christ. और इतना ही नहीं बल्कि मुल्क मऊद में मतलब उस आराम की जगह में मतलब खुदावंद यीशु में हमें फिर से खुदा दाखिल फरमाएगा। Everything is a marvelous thing in our life. हमारी जिंदगियों में ये सारी की सारी बातें जो हैं ये अजीब और गरीब बातें हैं। Even when we examine our personal lives, जब हम अपनी जिंदगियां जब हम झांक कर देखेंगे, before we accept our Lord Jesus Christ, जब हमने हमारे खुदावंद यीशु को कबूल नहीं किया था उन दिनों में we were supposed to be in some place where we were not known to anyone. हम उस जगह में उस मकाम में रहते थे जिसके बारे में कोई वाकिफ ही नहीं था। We don't know this great love and this great peace in Lord Jesus Christ. हमारे खुदावंद यीशु में ये जो बड़ा अमन है, ये जो बड़ा आराम है, इसके बारे में हम बिल्कुल अनजान थे। We were thinking that the small worldly love which is great in our lives and we were living in that place. हम तो इस दुनिया की मोहब्बत को ढूंढते ढूंढते रहे और इस छोटी सी बदल जाने वाली दुनियावी मोहब्बत में उसकी तलाश करते हुए उसमें हम मुब्तला थे। Satisfying our desires and living in this world without God. हमारी जिंदगियों में खुदा के ना होते हुए, खुदा के बगैर छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करते हुए जीते रहे। But God sent forth His only begotten Son for us. लेकिन खुदा ने अपने इकलौते बेटे को हमारे वास्ते भेजा And He made His gospel to be heard in our lives. और उसने अपनी खुशखबरी हमारी जिंदगियों में वो गूंज उठाई। He brought us, He is leading us every day. और उसके बाद हमें वो खरीदा, उसने हमें खरीद कर हर दिन हमारा चरवाहा बनकर चराते आया। And He made us to worship Him today in this holy और place. इस तरीके से आज उसके आबिद बनाकर इस पाक मकाम में उसकी इबादत करने के लिए हमें जमा भी किया है। In fellowship of our Lord Jesus Christ, हमारे खुदावंद यीशु की शिराकत में He gave us a great joy. उसने हमें बड़ी खुशी उसने बख्शी है। That is the reason in the 4th verse, Word of God is telling in the chapter 98, Psalm 98, इसीलिए मज़ामिर की किताब 98 की 4 में लिखा हुआ है, make a joyful noise unto the Lord all the earth. ऐ तमाम महले जमीन यहोवा के हुजूर खुशी का नारा मारो, Because He hath done marvelous things in our lives. क्योंकि उसने हमारी जिंदगियों में अजीब और गरीब काम किए हैं। May the God bless these few words. हमारे खुदा इन चंद आयतों पर अपनी बरकत बरसाए। Let us worship our God with joyful heart. हम खुशी से भरे हुए दिलों के साथ हमारे खुदा की इबादत आज शाम को करें। Amen. आमीन।